یہ لندن کی ایک یونیورسٹی کے کانوکیشن کے مناظر ہیں جس میں طلبہ عمران خان کا پورٹریٹ لے کر وہاں پر پہنچے. انہوں نے اپنی ڈگریاں تو لیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ دور حاضر کا قائد صرف عمران خان کو مانگتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں وہ گئے اپنے ساتھ وہ پورٹریٹ ساتھ لے کر گئے. السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرت سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے. اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے. لندن کی ایک یونیورسٹی کے کانوکیشن میں ٹائیگرز نے اخیر کر ڈالی. یعنی کچھ طلبہ جو گریجویشن کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک بڑا پورٹریٹ عمران خان کا تھا اور انہوں نے اپنے گاؤنز پہن رکھے تھے اور اپنی ڈگریز ریسیو کی اور اس کو انجوائے کیا. اس کے بعد قیدی نمبر 804 کے نعرے بھی لگتے رہے. لندن کی ایک یونیورسٹی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے، چاہے معاملہ لندن کی ایک یونیورسٹی کا ہو یا پاکستان کے کسی ڈھابے یا اسکول کا. عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے، خاص طور پر نوجوانان کا اور ٹائیگرز کا، وہ سینٹیمنٹ یہی ہے. وہ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ افیکشن کرتے ہیں، ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ان کو اپنے قریب دیکھتے ہیں اور اپنا دور حاضر کا قائد مانتے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر چاہے اپوزٹ قوتیں کچھ بھی سوچ لیں، یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہ جو بیج بویا گیا تھا وہ اب قدامت درخت بن چکا ہے اور وہ اب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ ڈیٹیلز میں شیئر کروں گا. جماعت اسلامی کے سابق امیر سراج الحق صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ بیان دے ڈالا ہے اور اس بیان میں جو چھپی بات ہے وہ بات بھی آشکار ہو چکی ہے اور پبلک اس کو سمجھ گئی ہے کہ اس بیان کے اندر ہے کیا. اس کی ڈیٹیلز کیا ہے وہ ڈیٹیلز شیئر کروں گا. کے پی حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور 9 مئی واقعات کی جوڈیشل انکوائری کے لیے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھا ہے اور اس خط کے مضمرات کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا. اس کے علاوہ عروبہ کومل، یہ پی ٹی آئی کی ایک ورکر تھی، وہ گھر سے ان کو اٹھایا گیا ہے، ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلا. اس کے اوپر کیمپین چل رہی ہے، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ ڈیٹیلز شیئر کروں گا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چیف الیکشن کمیشنر اور دیگر 4 ارکان کے خلاف پی ٹی آئی نے ریفرنس دائر کیا ہے، وہ ریفرنس کیا ہے وہ بھی شیئر کروں گا. کچھ وائرل ٹویٹس اور کچھ وائرل بیانات، اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے. ایک اور گزارش، اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یا ساتھ رکھے ڈنڈے سے دبا سکتے ہیں، ڈنڈے کا دور ہے. زیادہ سے زیادہ کامنٹس کیجئے گا تاکہ فائبر وال کا جو ایشو ہے، فائر وال کا، ایک تو پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے، وہ بریک ہو سکے. اور واٹس ایپ چینل کی جو لنک ہے وہ ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر میں نے کوٹ کیا ہوا ہوتا ہے، آپ اس کو کلک کریں اور میرا واٹس ایپ چینل جوائن کریں تاکہ ہمارے درمیان جو معاملہ ہے انٹریکشن کا وہ اور بہتر طریقے سے آگے بڑھایا جا سکے. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں گریٹ برٹن کی. وہاں پر لندن کی ایک یونیورسٹی کے اندر طلبہ کی گریجویشن سیرمنی تھی اور اس سیرمنی کے اندر وہ تمام طلبہ جنہیں ڈگریز ملنی تھی، یعنی سرٹیفکیٹس ملنے تھے یا جنہوں نے گولڈ میڈلز بھی لیے ہوئے تھے، جن کے تعلق پاکستان سے تھا، وہ اپنے ہاتھوں میں ایک بڑا پورٹریٹ عمران خان کا لے کر نکلے ہیں. اور میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ عمران خان ایک طرف تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن، دوسری طرف وہیں لندن کے اندر ایک اور یونیورسٹی کے اندر یہ معاملہ پیش آیا ہے. اور پھر جب ڈگری وصول کی ہے ان اسٹوڈنٹس نے تو ان کے ہاتھ میں عمران خان کا وہ پورٹریٹ موجود تھا. اس کے بعد انہوں نے قیدی نمبر 804 کے بلند و بانگ فلک شگاف نعرے لگائے ہیں. تو اس کیفیت کو دکھانے کا مقصد یہ صرف ہے کہ لندن ہو یا لیاری، کوئی بھی علاقہ ہو پاکستان کا یا پاکستان سے باہر، وہ تمام لوگ جن کو پاکستان کے اندر انٹرسٹ ہے ان کو عمران خان کے اندر انٹرسٹ ہے. وہ تمام لوگ جنہیں پاکستان کی معیشت کے اندر انٹرسٹ ہے انہیں عمران خان کی زندگی کے اندر انٹرسٹ ہے. یہ معاملہ بڑا انٹر ریلیٹڈ ہے، اس کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا. یہ ریسیپروکیٹ ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کہ اگر اس طرح سے نہ دیکھا گیا اور وہ تمام جو سیاسی ہرکارے ہیں جو حکومت کے اندر بیٹھے ہیں ان کو عقل کے ناخن لینا چاہیے کہ یہ پبلک کے جو سینٹیمنٹس ہیں اس کو آپ اپنے دھونس زبردستی یا دھمکی سے نہیں بدل سکتے، چاہے اور یہ بڑھیں گے. اور خدا نہ خواستہ اگر جیل کے اندر عمران خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ان کی صحت خراب ہوتی ہے تو اس صورت میں جو ریٹیلیشن ہوگی یا ریاکشن ہوگا بڑا خطرناک ہوگا. تو یہ آپ نے شروع میں ویڈیو بھی ملاحظہ کر لی، یہ لندن کی ایک یونیورسٹی کے مناظر تھے. اب دوسری ٹاپ سٹوری میں شامل کرتا ہوں. سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب نے ایک بیان دیا. وہ بیان دیکھ کر نا میری ہنسی نکل گئی. پھر میں نے کہا چلے خیر ہے،
हर चीज़ का एक तरीका होता है, लेकिन इसका नतीजा निकलना कुछ नहीं। वो भी ऐसी सूरत हाल में जिस वक्त लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे महंगाई के मामले के ऊपर, आपने ऐसा स्टेटमेंट दे डाला है तो वो आपको सपोर्ट करने की बजाय पीछे हट जाएंगे। जो 2-4 लोग बैठे हैं वो भी उड़ जाएंगे। क्या किया उन्होंने कहा है, सिराजुल हक साहब कहते हैं पीटीआई के मायूस कारकुनों का ठिकाना जमात इस्लामी है, हकीकी तब्दीली के लिए जमात इस्लामी का हिस्सा बने। अब इसके पीछे कोई कुव्वत कारफरमा है या नहीं है, बहरहाल अपनी पॉलिटिक्स चमकाने का सबके पास पूरा पूरा इख्तियार है। और इस वक्त अमीर जमात इस्लामी, जो साबिक अमीर जमात इस्लामी है, वो जमात इस्लामी के बैनर को अवाम की आखिरी उम्मीद तस्वर करते हुए कह रहे हैं कि तमाम पीटीआई वाले मायूस हैं तो इधर आ जाएं, और इधर आएंगे तो उनको बड़ा फायदा होगा। तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, बड़े बड़े हरबे इस्तेमाल कर लिए गए, बड़ी बड़ी वो चकाचौंध की रोशनियों ने उनकी आंखों को खीरा करने की कोशिश की है, लेकिन नहीं हुए। तो पब्लिक जो 8 फरवरी को निकली है ना, वो इमरान खान के नाम के ऊपर निकली है। इमरान खान इज पीटीआई एंड पीटीआई इज इमरान खान। इसके अलावा जो कोई भी सोचता है ना कि वो लोग इधर आ जाएंगे, तो ये सोच आपकी खाम ख्याली है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये बेवकूफ़ी भी थी कि कम से कम आपको सिंपति जरूर मैसर थी इस धरने के लिए या फिर इस एहतजाज के लिए। आपने ये वाली बात करके वो सिंपति भी तकरीबन अपने अंदर से ख़त्म कर दी है। तो इसको मैं माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, मेरा बड़ा उनके एहतराम का रिश्ता है, ये अहमकाना स्टेटमेंट था, ये देने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना कहते थे कि पीटीआई भी हमारे साथ मिले और ये एक वफाकी कॉज है और इस कॉज के लिए, अवाम के लिए बाहर निकले, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर होता। अगली टॉप स्टोरी की तरफ चलते हैं। वो है केपी हुकूमत का एक बड़ा फैसला। केपी हुकूमत ने क्या किया है? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत लिख दिया। वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आसिफ आलम ने बात करते हुए कहा कि 9 मई वाक़यात से मुतालिक जुडिशल कमीशन के क़याम से मुतालिक चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को खत लिखा है। खत सूबाई हुकूमत के एस्टैब्लिशमेंट और इस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से इरसाल किया गया है। ये बड़ी डेवलपमेंट है, एटलीस्ट केपी सूबे की हद तक तो बड़ी अच्छी है। आफ्ताब आलम ने मजीद बताया कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अब कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे और जुडिशल कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। खत में 9 मई के वाक़यात से मुतालिक जुडिशल कमीशन के क़याम की इस्तदा की गई है। याद रहे, खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दी थी और कहा था कि 9 मई वाक़यात में मुलव्वस असल किरदारों को सामने लाया जाए। सूबाई हुकूमत में आते ही पीटीआई ने यह मौक़िफ़ अपनाया था कि वो 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कराएगी और इस सिलसिले में चंद दिन कबल काबीना इजलास हुआ जिसमें जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दी गई और अब जुडिशल इंक्वायरी के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर खत चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को लिखा गया है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये मैं एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक खातून वर्कर हैं पीटीआई की। वर्कर से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ये उनके सोशल मीडिया के लिए काम करती है, ज़ाहिर पे ले रही होंगी। इनका नाम है अरूबा कोमल। इनको इनके घर से अगवा किया गया है। अब किसने किया, पुलिस ले गई है। अभी तक इनकी गिरफ्तारी, अभी तक तो जब तक आप व्लॉग देख रहे होंगे, ज़ाहिर नहीं की गई, लेकिन हो सकता है उस दौरान कर भी दी जाए। तो इसके लिए इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर रिटेलिएशन है। अच्छा, ये जो नौजवान है ना, 18, 20, 22, 23 साल के बच्चे, इनको 40-50 हज़ार की कोई भी नौकरी मिल रही हो तो उसके लिए काम कर रहे होते हैं। तो उनके घर का किचन चल रहा होता है। वो तकरीबन अब 16-17 ऐसे बच्चे हैं जिनको उठाया गया है और उसके बाद उनका अभी तक कुछ का पता चल गया, कुछ का पता नहीं है। बट ऐसी सूरत हाल के अंदर ख़ास तौर पर ख्वातीन, बच्चियाँ जो बाहिजाब भी हैं और फिर घर से निकलने में उनको बड़ा मसला होता है, उनके लिए रोज़गार का बड़ा मसला होता है, उनके लिए दीगर मामलात बड़े मुश्किल होते हैं। घर वाले अव्वल पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में वर्किंग लेडीज़ को पसंद ही नहीं करते, बहुत कम ट्रेंड है। और किसी गांव की या छोटे शहर की बच्ची अगर काम कर रही हो तो उसके लिए ये भी बड़ी बात होती है। और ऐसी सूरत में इस तरह का वाक़या पेश आ जाए तो मेरे ख्याल में फिर नस्लों के लिए उनकी ख़ानदान में से शायद किसी को काम करने का मौका ना मिले। ये थोड़ा सा है मामला, इसके ऊपर नज़रसानी की ज़रूरत है कि अगर कोई मसला है, कोई बहुत बड़ा मामला है, तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करके ट्रायल किया जाना चाहिए, ना कि इस तरह से हो कि उसके बाद पूरे का पूरा ख़ानदान जो है वो मज़ीद मुश्किलात में घिरता चला जाए। आगे चलते हैं जी। अगली टॉप स्टोरी वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर 4 अरकान के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बड़ी स्टोरी है। उसमें सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ किया गया है, बाबर हसन भरवाना के खिलाफ, निसार अहमद दुरानी और शाह मोहम्मद जतोई। तो ये उमर अयूब खान साहब सेक्रेटरी जनरल पीटीआई, इन सब ने मिलकर जो है इनके खिलाफ जो है रेफरेंस फाइल कर दिया है। अब इसके नताइज क्या निकलते हैं ये आने वाले चंद दिन में पता चलेगा, बट वेरी इंपॉर्टेंट ये हुआ है। अच्छा, शफकत महमूद साहब ने मंसूर अली खान को एक पॉडकास्ट दी है और उनसे
सवालात किए गए जिसके जवाबात कुछ यूं आए। शफकत महमूद बोलते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अमेरिका ने नहीं गिराई, इमरान खान ने वो सारा बयानिया सियासी फायदे के लिए बनाया। ये जो पॉइंटर्स निकले हैं और मंसूर अली खान ने ट्वीट किए हुए हैं, हमारी हुकूमत जनरल बाजवा ने बनाई भी और गिराई भी, और उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाना गलती थी, जनरल आसिम मुनीर को ISI के सरबराह के ओहदे से हटाना गलती थी। कोट एंड कोट वो जुमले हैं जो मंसूर अली खान ने ट्वीट किए हुए हैं। लोग कहते थे कि 2014 का धरना इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। ये पॉडकास्ट रिलीज होगी तो पता चलेगा कि इसके अंदर मजीद क्या डिटेल्स हैं, लेकिन हमने अभी तक यही देखा है। कुछ वायरल ट्वीट्स में शामिल करता हूँ। वायरल ट्वीट्स में हामिद मीर साहब एक ट्वीट करते हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं, रात को प्रोग्राम्स में बैठकर अदलिया पर तनकीद की जाती है कि अदालत ने मुलजिमों को क्यों छोड़ दिया। अदालत ऐसे टॉक शोज की पजीराई नहीं कर सकती। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में अदलिया पर तनकीद करने वालों को जवाब दिया गया कि अदालतें खिलाफ कानून कामों की सहूलतकारी नहीं करती। और यह मकबूल जान साहब के जो व्लॉग हैं उसका थंबनेल है कि PTI का वार इलेक्शन कमीशन के साथ और कौन कौन कटहरे में आ सकता है। ये जो अभी मैंने 4 लोगों का नाम लिया जिनके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल किया गया, वो उसकी बात हो रही है। इमरान रियाज खान ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं, पुलिस ने शनाख्त के बाद जमाते इस्लामी के कारकुनों को छोड़ दिया और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जेल ले गए। जमाते इस्लामी के छूट कर आने वाले कारकुन के इंकशाफात। आगे चलते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब का एक ट्वीट है, वो मैं शामिल करता हूँ। वो कहते हैं, ये बच्ची जो अरूबा कोमल गायब हुई है, इसके बारे में खुदा का खौफ करें। सैयदा अरूबा कोमल को सिर्फ इसलिए उठाया गया कि वो इमरान खान के नजरिए को सपोर्ट करती है, वो तो 90% पाकिस्तान करता है। सैयदा अरूबा कोमल को किसने उठाया और क्यों, अवाम में निकल कर पूछ लें। अब किसी से कुछ ढका छुपा नहीं है। ये शहबाज गिल साहब ने ट्वीट कर रखा है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहला वायरल बयान ख्वाजा आसिफ साहब, सुनिएगा। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, कोई शक नहीं कि बजट से महंगाई में इजाफा हुआ, लेकिन मुल्क आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। जो इकदामात उठाए उससे आने वाली महीनों में मईशत में बेहतरी आएगी। वो प्रेशर नहीं लेता और गैस आहिस्ता आहिस्ता निकलती रहती है, हवा आहिस्ता आहिस्ता निकलती रहती है। माजत के साथ, मतलब ये पिछले 40 साल से एक ही चूरन बेचा जा रहा है इनके हुकूमतों में, और ये हर 2 साल 2.5 साल 3 साल के लिए आते हैं और उसमें यही कहते हैं कि बस आहिस्ता आहिस्ता जो है हम दोबारा से मंजिल पर पहुंच जाएंगे और परेशान ना हो, फिक्र ना करें। मैं इतना कहूंगा, भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे चलते हैं जी। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं, कैदी नंबर 804 को पैगाम देना चाहता हूं कि मैं खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। अल्लाह करे कि आप ऐसे ही खड़े रहें, साबित कदम रहें। ये बड़ा स्टेटमेंट है। मैं इतना कहूंगा, भाई कैसे कर लेते हो यार। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। शब्बर जैदी साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है उन्होंने। मैं इससे हो सकता है डिसएग्री करूं, लेकिन उनकी बात में बड़ा वजन है। वो कहते हैं, पेशावर में 10 लाख लोगों का जलसा क्यों नहीं हो सकता। वेरी इंपॉर्टेंटली, और चलो और तो कहीं नहीं हो सकता, मसले मसाइल है, पेशावर में तो हो सकता है। पेशावर में 10 लाख लोगों का जलसा क्यों नहीं हो सकता। आगे कहते हैं, PTI नालायकों का टोला है। अच्छा, कुछ होंगे लोग, लेकिन अच्छे लोग भी मौजूद है, ये बात नहीं है। फिर इमरान लीडर है, बाकी सब परिंदे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इतना कहूंगा, भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। PTI सिर्फ एक बंदा है, एंड दैट इज इमरान खान, और इमरान खान ही PTI है। आगे चलते हैं जी। मोहसिन शाहनवाज रांझा, ये कहते हैं, लंदन में यहूदी उनके मेजबान बने होते हैं। ये इमरान खान से मुतालिक कहते हैं, लंदन में यहूदी इनके मेजबान बने होते हैं, तो सवाल पैदा होता है कि यहूदियों की हिमायत याफ्ता जमात कहां से आई है। अरे कितनी ये वो कहते हैं ना कि नैरो माइंडेड परसेप्शन है कि अगर नवाज शरीफ साहब एंजेला मेर्केल से हाथ मिलाते हैं तो क्या वो उनके फेथ के फॉलोअर हो गए। ऐसा नहीं है। अगर वो किसी नरेंद्र मोदी उनके घर पे आते हैं तो क्या मतलब वो रॉक एजेंट हो गए नवाज शरीफ साहब। तो ऐसा नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा कुछ चीज़ों को जो है ना वो एग्जैजरेट करके पेश करके आप वो कहते हैं ना कि मेल्ट डाउन नहीं कर सकते चीज़ों को, क्योंकि पब्लिक ने जो सोच रखा है, कितने वाकयात हो गए उसके बावजूद वो उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। लोग दुकानों में खाना खाते हैं, ऊपर लिखते हैं मुर्शद का नियाज दे रहे हैं हम, तो आप कर लें, उसको तब्दील नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक खास तरीक़ाकार है और वहां तक पहुंचने की जरूरत है। मैं इतना कहूंगा, भाई कैसे कर लेते हो यार। खतून से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।